Hijab Day organized by Girls Islamic Organization, Mysuru on February 1, 2022. Hijab telephone controversy echoed in Mysore. Hijab telephone campaign in Bani Mantap. The hijab controversy in Mysore, Udupi and Kundarpur is now echoed in the cultural city of Mysore. Many students of Mysore today went to college wearing hijab and went to the government. Students of the Bani Mantap of Mysore, near Mysore, wore a hijab. Subsequently displayed a placard called I Love Hijab. He also joined the hijab campaign by holding various slogans to accommodate the hijab in all colleges. Students attending several colleges, including in Mysore, joined the Bani Mantapa and then walked to the college wearing a hijab. As a challenge to the hijab, students from Kundanagari, Belgaum came to college wearing saffron shawls. The hijab controversy in Udupi and Kundapur is now widespread, including Mysore and Belgaum. Hijab versus saffron has been fought by two religions to preserve it. Now the issue is turning into a nationwide controversy. Jammu and Kashmir PDP chief Mehbooba Mufti has expressed outrage over the attitude of the Karnataka government in preventing students from attending college wearing the hijab. Spoke to our channel. Refer A Room. Dr. Saba Tasmin, President, Aneka Miriam, Member, Naba Tuskin, Associate. Subscribe our channel for latest updates. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಬಾ ತಸ್ಮೀನ್, GIO ಮೆಂಬರ್. GIOಗೋಸ್ಕರ, GIO ಅಂದರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಿಂದ ವಿಂಗ್, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಇದು GIO ಅಂದರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾವು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅದರದ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿ ನಾವು GIO ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹುಡುಗಿರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಆ ಜಾಗೃತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2022 ಆ ದಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಹಿಜಾಬ್ ಡೇ ಇತ್ತು. ನಾವು ಆ ದಿನ ಹಿಜಾಬ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರದ ಏಮ್ಸ್ ಏನು, ಅದರದ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯಗಳಿಗೂ ನಾವು ಹಿಜಾಬಿನ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಜಾಗೃತಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಜಾಬ್ ನಮಗೆ ಇದು ಒತ್ತಡ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸು. ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಜಾಬ್ ಡೇ ಅಂತ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆನೂ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐತಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅರಸು ರೋಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಿರೋ ಜನರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಾಗೃತಿ ಕರ್ಮ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜನರು ಅವ್ರದ್ದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಇದೆ. ಹಿಜಾಬು ನಮಗೆ ಐತಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನೀವೊಂದು ಬನಾನಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದೇನು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಕೊಳ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಆ ಥರನೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂರಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗಾಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ? ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓದ್ತಾ ಇರುವ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆದರೆ ಸೆಕೆ ನನಗಾಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು
ಇದು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿರುವ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಏನೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡ್ಡಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಅದು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಓದೋಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾಲೆಜನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. जी, तो व्यूअर्स को ये बताइए जियो का फुल फॉर्म क्या है? यानी GIO यानी गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जी जो हमारे जमात इस्लामी हिंद के अंदर जो है, हम गर्ल्स के अंदर जो है काम करती है एक मेनली। विंग है जमात इस्लामी। हाँ, जमात इस्लाम की एक विंग है। जी तो हम क्या करते हैं, मेन टारगेट हम यंग गर्ल्स जो 13 और 26 इयर्स के बीच में जो लड़कियां हैं, उनके बीच में जो है हम काम करती, क्योंकि मेन जो है जमात इस्लामी हिंद में गर्ल्स के अंदर अगर कुछ काम करना तो हमें उसमें साथ देती। बिल्कुल। मैडम उस दिन जो हुआ यानी हिजाब को लेकर आज भी जो कुंदापुर में हुआ है, आप जैसे उम्र की लड़कियां वहाँ पे एक जोश और खरोश से अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर आवाज बुलंद की, आप क्या कहना चाहेंगे? हम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ईयर प्लान के अकॉर्डिंग February 1 को जी इंटरनेशनल वर्ल्ड हिजाब डे है। ये हिजाब डे इट वाज नॉट फर्स्ट टाइम, पहली बार हमने सेलिब्रेट नहीं किया था। इससे पहले भी, लॉकडाउन से पहले भी हमने अरसू रोड में सेलिब्रेट करके हैं। हम हिजाब डे के दिन हम ये बताना चाहते हैं, हिजाब एक मुस्लिम औरत के लिए बून नहीं है, एक वो हिफाजत कीजिए। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी हर इंडिविजुअल को उसका राइट है कि उसका रिलीजन के अकॉर्डिंग पुण्य रहने के। हमें इस मौके पर यानी कि 1 फरवरी को हमें आवाज़ बुलंद किया, हमें हिजाब कई को पहनती। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिजाब हमें नॉन मुस्लिम्स को, जो मुस्लिम औरत जो जानते नहीं उनको आपको पहुंचा पैगाम। जी और एक गलत चीज़ है सबके दिलों में, जो जी। भी हिजाब नहीं पहनते उन्हें सोचती हैं कि हमें हिजाब के अंदर ओप्रेस्ड ही, हमें फोर्सफुली हिजाब हमारे ऊपर डालती हैं, और हिजाब के वजह से हमारे ऊपर एक जुल्म हो रहा है लड़कियों के ऊपर। तो एक गलत सोच है माशरे में हमारे, वो गलत सोच को हमें मिटाने के वास्ते कि ये हिजाब जो है हमारे ऊपर फोर्सफुली नहीं है, एक ऑपरेशन नहीं है, इंडीड वो एक हमारे ऊपर हमारे एक प्रोटेक्शन के लिए, हम पावर देने के लिए, और एक ताकत हम ना देते हैं एक हिजाब। तो उस चीज़ को हमें जो है आप माशरे अपने में अंदर बताना महफूज चाहिए। समझते हैं। हाँ, महफूज समझते जी, हैं। महफूज का एग्जाम्पल भी हम लाइक साइंस के हिसाब से भी दे सकते हैं। जी बनाना कब महफूज रहता है, कब सेफ रहता है, जबकि उसके ऊपर छिलका बिल्कुल। होता है, जब छिलका निकाल दिया जाता है तो सबको दिखाया जाता महफूज नहीं रहता। है। चॉकलेट भी ले लो, जी चॉकलेट का भी उसका ये निकाल डाले, बिल्कुल, बिल्कुल, कवर wrap निकाल निकाल डाले तो जी। कौन भी नहीं उठा खाते। बिल्कुल पूरे भी किसे चूज करती कि कौन सा चॉकलेट क्लोज सही है बात। उसे उठाती। बिल्कुल बिल्कुल और मिसाल तौर पर फली के दाने, वो भी कवर रहती, जी जी तो जब वो निकालती तो फली हमें खाती। बिल्कुल तो बिल्कुल ये हिजाब है एक नेचर से भी जुड़ी हुई चीज़ है। जी हर चीज़ को, हर एक को महफूज रखने वाली चीज़ एक हिजाब है। माशा और तुम ये भी बोल सकती हैं कि एक औरत को हिजाब की ज़रूरत है, बल्कि वो कमज़ोरी नहीं, वो एक ताकत है, वो एक ख़जाना है, वो एक सुन्ना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल तो सही। इसको, एक खजाने को महफूज रखने हिजाब है। अच्छा मैंने हिजाब देखा- बून नहीं है हमारे जी ऊपर। जी मैंने देखा कि आप जिस वक्त यहाँ पे मैसूर में कैंपेन कर रहे थे, आप गैर कौम लड़कियां भी आपके पास आ रही थी, वो किसी जी हाँ। मतलब आपको इम्प्रेस हुए थे वो? हाँ, आप- हमें उनका क्या कॉलेज- कहना था वो बताइए। हाँ, हमें कॉलेज के नज़दीक करने का मकसद ये था कि लड़कियों के अंदर एक मालूमात भी पैदा करना कि जो हमें- गलत बातें हैं, हाँ, उसे गलत साफ करना बातें था। उसे ये And करना। they were impressed. हाँ, Yes, yes, बहुत yes. लोग They आज were हमें themselves were coming towards and asking for it. हाँ हाँ
they themselves came, we want to try hijab, they Okay. felt free, they supported us. हाँ There were girls who were supporting exactly us. I want to Yes. hear और that उधर हम एक फीडबैक चार्ट भी लगाए थे. हाँ After every girl experiences the hijab, they were coming and writing the So feedback. feedback. Yeah, every feedbacks we had. feedback we got was positive. They अच्छा. felt very nice. is it Yes. माशाल्लाह बहुत सारे लड़कियों खुद आकर ट्राई कर रहे थे और हमें थोड़े हिजाब्स लाइक वी हैड केप्ट 10 to 20 हिजाब्स जी जिसमें हमें जो है लड़कियों को खुद से चूज करके उनके पसंद का हिजाब ट्राई करके अच्छा. उसका उनके एक्सपीरियंस भी मालूम करे और सबका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था. अच्छा और क्या है कि हमारे माशरे के अंदर लाइक इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, बिल्कुल तो इतने ज़्यादा डेवलपमेंट्स आले को जा रही मगर ये हिजाब के ऑपरेशन जो है जाते जाते जो है ऑपरेस होते जा रहा है. जी. हिजाब को कौन भी सपोर्ट करने वाले नहीं. जी आजकल तो हर कॉलेजेस में देखो, स्कूल्स में देखो, इवन जॉब्स भी जो हैं, जॉब्स में भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं कि हिजाब प्रैक्टिस करने नहीं देते. अगर जी. हिजाब से हमें प्रैक्टिस करना चाहती हैं तो उन्हें नहीं लेते हम ना. तो ऐसे बहुत सारे लड़कियां भी जो सफ़र कर ले को आ रही और आवाज़ नहीं उठा सक रहे उन्होंने. जी तो हमें उससे भी जो है ये करना आवाज़ देना चाहते थे कि हिजाब को जो है प्रमोट करने की ज़रूरत है बिल्कुल, और सबसे उसे पहली बात हिजाब को समझना क्या है हिजाब क्या है ये समझने की बात है Yes, सबसे पहले according to Constitution, Article 25, we have right of freedom. Yes. We have right to follow our religion. Yes. So, if we see, we need to be judged on what we are studying, on our knowledge, not with the fabric which we cover. Yeah, of course. Yes, and choosing our clothes, choosing what we wear is not something to be judged. Yes. We see people जैसे हम लोग देख रहे स्टूडेंट्स को है नहीं उनके जस्ट बिकॉज दे आर वेयरिंग हिजाब दे आर नॉट अलाउड टू कम टू कॉलेज. Colleges, schools are temples for students. We gain their knowledge. जी हम लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट स्कूल्स कॉलेजेस क्या नॉलेज हासिल करने के वास्ते है, हमारा ड्रेस जज करने के वास्ते नहीं. बिल्कुल बिल्कुल हमारे नॉलेज के हिसाब से हमारे को स्कूल्स कॉलेजेस में बुलाना है, व्हाट वी वेयर उससे नहीं. बिल्कुल बिल्कुल So this was our point that we should bring that awareness among girls. We need to be judged on our knowledge, what we study. On we can see girls working hard, moving front. आजकल लड़कियां पायलट है, डॉक्टर है, हर चीज़ है, हर एनवायरनमेंट में हम लोग जैसे देख सकते हैं हर इसमें है, हर फील्ड में है, हर जी। फील्ड में है. जी लेकिन उनको उनके ड्रेसेस पे जज नहीं कर सकते. अगर एक लड़की सबसे छोटे से छोटे कपड़े पहन के आ सकती, उनको अग्री कर सकते, तो हम लोग जब पूरा का पूरा कपड़े पहने तो उसको जज नहीं कर सकते, बिल्कुल, उसको नहीं बोल सकते. बिल्कुल मैडम ये भी गलत है कि हमें बिल्कुल। हमारा रिलीजन में एक है, ये नहीं है कि हमें प्रैक्टिस करनी वो अलग है, मगर दिस इज इस्लाम. इस्लाम इज फॉर गर्ल्स, इस्लाम इज हिजाब, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ. अगर दूसरे रिलीजन्स में हमें कुछ भी रोक नहीं कर रही, दूसरे भी जो कल्चर्स फॉलो कर रही हैं उसमें अगर रोक नहीं है तो हिजाब को भी रोक नहीं लगा सकते. बिल्कुल बिल्कुल मैडम हिजाब हमारी चॉइस है, हमारा राइट है. जी जी हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग हमें हमारी जिंदगी जीती. बेशक आपको जीने का हक है. इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक दिया है, जैसा कि सदर साहब बता रहे थे. आपको अपना हक लेने का ये है, इसमें कोई खौफ की बात बिल्कुल नहीं है. हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो इसकी आवाज़ में आप जो काम कर रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद है. मैं उम्मीद करूंगा कि जब तक ये जो फैसला है वो बदले ना, आप लोग सामने ऐसे ही खड़े रहेंगे. जी लड़की होने के बावजूद आप ना जिस किस्म का जोश दिखा रही हैं वो वाकई में काबिल मुबारकबाद है. हम समझते हैं कि जज्बा बाकी रहेगा इंशाल्लाह. हम ये भी अपील करना चाहती हैं, गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहती हैं कि जो भी हमारे राइट्स जो हमसे लिए गए हैं वो राइट्स हम ना दिए, और जो भी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट्स हैं जो हर चीज़ में गर्ल्स को सामने रखती, उनको ये भी सपोर्ट करना कि गर्ल्स इन हिजाब और ऑल्सो वेरी सेफ. या Yes, सेफ, तो उनको भी सपोर्ट करना जो बोलती हैं कि फेमिनिस्ट जो छोटे कपड़े पहनने को जो फ्रीडम समझती और जो भी मेन और वुमेन को कंपेयर करती हैं दूसरे जॉब्स में, वो उनको भी चाहिए कि उन्होंने इसको भी चीज़ को सपोर्ट करें. बिल्कुल बिल्कुल